Well, let me tell you, it's an intensely cold day here in Delhi. But politically, things are heating up. Today, the day started with high drama, with the Aam Aadmi Party claiming that Arvind Kejriwal would be arrested by the Enforcement Directorate tonight. Well, it's 8 o'clock. Mr. Kejriwal has still not been arrested, and the ED is now saying, "We told you so." But as Mr. Kejriwal cries wolf and gets ready now to jet off to Gujarat, there is a new scam that is promising to cause turbulence in Delhi. I will talk about that in just a bit. Before that, let's hear from Mr. Kejriwal. मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। Okay, so that is Mr. Kejriwal claiming that the BJP is preparing to arrest him in the alleged liquor scam. Now, going by what has happened to his key aides Manish Sisodia and Sanjay Singh, that may or may not be true. Time will tell. For the moment, the LG of Delhi is telling us that there has been a 100 crore rupee scam in AAP's flagship scheme, the Mohalla Clinic, a scheme that gives primary health care to the poor. Now, the LG is saying there is proof that shows that fake pathology and radiology tests were reportedly conducted on ghost patients in these Mohalla clinics. The LG claims that 5.5 lakh such tests were reportedly conducted on ghost patients to benefit private labs. He alleges that the payments have been made to private labs, and he says that the scam runs into hundreds of crore rupees at the cost of the poorest of poor. All this in a letter to the CBI that will now be probing the scam. Now, this is part 2 of the Mohalla Clinic scam, because the CBI is already probing the case of fake medicines allegedly distributed at these clinics. A vigilance report had showed that 10% of all medicines in Delhi's government hospitals had failed the quality test. Interestingly, as a fresh spat breaks out between the AAP and the BJP, both parties are pointing fingers at each other for what we are calling lab gate. Not very imaginative of us, but that's the best we could do. AAP says we flagged the scam. In fact, we even wanted the health secretary sacked, which the LG didn't do. The LG has the power to do that, they say. He simply didn't do it. The BJP, of course, is calling Mr. Kejriwal a scamster. Listen in. जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयां हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना,
असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। Okay, that tutu men is only going to continue through this year. This is, after all, an election year. Ladies and gentlemen, before I introduce my guests, once again, a caveat I give every time. We had sent an invite to the Aam Aadmi Party to participate in this discussion simply because the charges are directly against them. In their wisdom, they have chosen to ignore our invite. Anika Mehrotra is a Congress spokesperson joining us on the broadcast. Neerja Chaudhary is a senior journalist with us on the broadcast. RP Singh, BJP spokesperson on the show, thank you very much. And Sanjeev Kaushik is a political analyst who will be speaking on behalf of the Aam Aadmi Party. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us. Sanjeev ji, पहला सवाल तो शायद आपसे ही बनता है. Because the allegation is directly against you. चल क्या रहा है? मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम है. उसमें भी घपला, पहला घपला नहीं है तो दूसरा घपला है. स्कीम ऐसा लग रहा है और कुछ काम करती नहीं, सिर्फ घपले और घपले ही करती है. पहले फेक मेडिसिन, अब फेक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और घोस्ट पेशेंट्स. बताइए. ये तो लंबी फहरिस्त है. भारतीय जनता पार्टी भी बता रही है और आप भी बताएंगे कि घोटालों की लंबी फहरिस्त है. इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तकरीबन 1.5 साल पहले से ये लगातार चलता चला. 2 साल होने जा रहे हैं. एक आबकारी घोटाले की बात हो रही थी, लीकर घोटाला जिसका नाम दिया गया. आज तक एक भी पैसा उसमें नहीं आया, पकड़ में नहीं आया. पीने वाले कह रहे थे हमें सस्ता मिल रहा है, सरकार कह रही थी कि हमें राजस्व मिल रहा है, दिल्ली के लोग खुश थे. बेचने वाला कह रहा था कि हमें भी फ़ायदा इसमें मिल रहा है. लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और एलजी साहब को. उस नीति को पास करने के लिए आगे बढ़ाने वाले एलजी साहब भी थे. उसमें क्या हुआ सारे लोग जानते हैं. अब उसके बाद में आ जाते हैं. कुछ दिन पहले दवा घोटाले की बात हुई. स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि नहीं, ये वित्त सचिव जो है इसको हटाइए, ये ऑडिट नहीं करने दे रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, इसको हटा दीजिए. एलजी साहब के कान पर जू तक नहीं रखता है. एक दिन अचानक पता चलता है कि दवा के खरीद में घोटाले हो गई और डुप्लीकेट दवाएं खरीद ली गई. अब ये तीसरी बात ये निकल के आ रही है. तकरीबन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तकरीबन 5,21,000 के आसपास में रिपोर्ट है. उसमें से 20-22 हज़ार के आसपास में बताया जा रहा है कि फर्जी है. किसी में 99, किसी में 000 नंबर दिया गया है. मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ कि इस आधार पर क्या दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा की एक रीढ़ बन चुकी मोहल्ला क्लिनिक को खारिज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या घोटालेबाजों की सरकार कह देनी चाहिए? निश्चित तौर पे ये यदि आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए. हमें इससे कोई एतराज नहीं है. संजीव जी, इंटरेस्टिंगली आप ही की पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी ही कह रही है कि भाई 6 महीने पहले सबसे पहले हमने बोला था कि यहाँ घपला हो रहा है, जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फेक तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, और हमने तो 26 लोगों को आइडेंटिफाई किया और बोला उनको हटा दो. तो ऐसा नहीं है कि एलजी साहब जो है हवा में तीर मार रहे हैं. ये बात तो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी पता थी. बताइए, इस बात को लेकर के मंत्री बर्खास्त कर दी जाए, सरकार को खत्म कर दिया जाए, केजरीवाल साहब को जेल में भेज दिया जाए, या जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कौन करेगा? हम सीधी सी बात की, जिस अधिकारी की बात हो रही थी, सारे लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी. एक लंबे लड़ाई के बाद में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र से लड़ने के बाद में आम आदमी पार्टी को ये अधिकार मिला था कि नहीं, जो व्यवस्थाएं अदालत ने दी थी कि नहीं, एक चुने हुए सरकार के अधीन में अधिकारी होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए, अपने कार्यों को संपादित नहीं करा पाएगी सरकार, उसके अधीन रह के काम करना चाहिए, जिम्मेदारी नहीं होगी तो न पनिशमेंट दे पाएंगे, न बेहतर काम करने के लिए आप प्रोत्साहन दे पाएंगे, इसलिए उसको अधीन में रहना पड़ेगा. आपने कानून लाके उसको भी बाहर कर दिया. एक मंत्री के अधीन यदि अधिकारी काम न करे, उसकी बात न सुने, उसके अगेंस्ट में उसको कोर्ट तक जाना पड़े, कैसे उम्मीद करते हैं आप? आरपी सिंह गलत तो नहीं बोल रहे हैं संजीव जी. The point is the power to appoint and dismiss the health secretary of Delhi lies with whom? Lies with the LG. AAP is saying we had flagged off concerns not today but last year. We had said sack the 26 health officials we have identified, sack the health secretary that we say is to blame for this fraudulent, for all the fraud that is happening in the Mohalla clinic. The LG decided to keep quiet, and today in the letter to the CBI, the LG is blaming the chief minister and the health minister of Delhi. अरे भाई क्यों? आप तो कह रहे हैं इसमें हम क्या करें? कुछ करना है तो आप ही कर सकते हैं, अधिकारी तो आप ही के हैं. 26 डॉक्टर की बात की तो
But this is not confined to doctors only. It's a much bigger scam. अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता जो भी हैं, उन्होंने कहा कि 22,000 फेक टेस्ट पकड़े गए हैं उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनके हिसाब से, और जिसमें नंबर ही नहीं है या नाम ही नहीं है, या एक ही नाम के आरपी सिंह नाम के 1000 टेस्ट हो रहे हैं, 1000 पेशेंट आरपी सिंह चल रहे हैं, या 8 या लोग नीचा चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ मामला चल रहा है. So let CBI inquire into it. If doctor is involved, if the concerned officer is involved, if the minister is involved, let CBI inquire into why they are running out of money. पर कल बोलेंगे हम तो नहीं पेश होंगे. Mr. RP Singh, but even before क्या डॉक्यूमेंट है, क्या एविडेंस है? सर अभी आपने लिकर गेट में कहीं बात, लिकर गेट के अंदर कोर्ट ने कहा कि 8 करोड़ का तो मामला समझ लगता है, 300 करोड़ से ऊपर का मामला समझ लगता है, तो आप इसकी बात कर रहे हैं. और आपके सिसोदिया साहब ने 7 बार कोशिश कर ली कि उनको बेल मिल जाए, कोर्ट ने मना कर दिया. कोर्ट पर चश्मा लगाकर तो नहीं बैठी ना, नहीं हमने बेल नहीं देनी. 7 बार ट्राई करने कोशिश करने के बाद गिव मी सेकंड to the liquor scam. हाँ, Let's not deviate to the liquor scam क्योंकि फिर बात बहुत लंबी खींचेगी, उसको छोड़ दीजिए. But here's the point, Mr. RP Singh, I'll also try and fix your audio. I don't know, there's been some recurring technical problem with us and Zoom links. But you know, the point is, you are saying let the CBI inquire. अगर इनके हाथ साफ है तो no one can arrest them, no one can do anything against them. But the fact is that the LG has already decided that it is the health minister and the Delhi chief minister who are to blame for this latest scam in Delhi's Mohalla clinics. Although the LG has already decided who's to blame. Has LG written that it's the chief minister or the health minister? बिल्कुल. Give me a second. बिल्कुल लिखा है. मेरी बात बिल्कुल लिखा है. आप जरा चिट्ठी पढ़िए जो उन्होंने CBI को भेजी है. That they are cheating the poorest of the poor in Delhi. जी, थैंक यू. चिट्ठी में लिखा है कि इंक्वायरी हो, because there are accusations that fake company which has been involved in those test cases has some links with the people. No, that links has to be established by the CBI. It's not that LG is saying that hang these people. There's an inquiry which has to happen. And what's wrong in holding an inquiry? The Aam Aadmi Party supporter or a spokesperson himself is saying there are 22,000 cases which has been unearthed. There will be much more. Not only this, those 6 children died. 6 children died by having the wrong medicine, given the wrong medicine by the Mohalla clinic. How can we forget 20,000? 2021. So 2024 is going to be a year of elections and a year of scams in Delhi, you're telling me, because the BJP has a long list of scams against the Aam Aadmi Party that they are going to expose. Right, that is what you're saying. But please, again, as I said, चिट्ठी पढ़ी, उसमें साफ लिखा है that the health minister and Delhi chief minister allowed this scam to take place. Yes. Would you want to respond to what he's saying, Mr. RP Singh? जो ये 24 का इलेक्शन सामने आएगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आप जब नजर उठा के देखेंगी तो आप जब नजर उठा के देखेंगी तो तमाम उन विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, सबके ऊपर ईडी, सीबीआई इस तरह की कार्रवाई होगी और इलेक्शन समाप्त होते होते देखेंगे कि बहुत सारे केस इसमें से अपने आप खत्म हो जाएंगे. उसकी चर्चा भी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी. ये एक रणनीति का हिस्सा है कि हर इलेक्शन से पहले आप पैटर्न उठा के देख लें. जब आप देखेंगी तो महाराष्ट्र चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तमाम मध्य प्रदेश हो, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान हो, वो तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस तरह से छापे लगातार पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा है. इनकी आदत यही है कि हर इलेक्शन में विपक्षी पार्टियों की छवि को कैसे खराब किया जाए और समाप्त होते इलेक्शन समाप्त होते सब अपने अपने घर. लेकिन स्कैम तो लग रहा है ना, है मैंने लग रहा है ना पार्टी के बोलने की वजह से, केजरीवाल के बोलने की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, करेंगे.
यदि इसकी जांच करानी है सीबीआई से तो करेंगे ये, इसमें तो कोई कर ही नहीं सकता, सारे अधिकारों को वो समेट के बैठे हैं। लेकिन अगर घपला लग रहा है, साफ प्रूफ दिख रहा है कि घोस्ट पेशेंट्स थे और इनके फेक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए गए ताकि कुछ प्राइवेट फर्म्स को पैसा मिले, नाजायज पैसा मिले, सरकार का पैसा मिले, तो इसमें तो स्कैम दिख ही रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में तीर मार रही है एलजी और बीजेपी। कहां कर रही है कि आप जांच नहीं की, जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन से कम मंत्री की बात, मंत्री के आदेशों को यदि सचिव नहीं मान रहा है, सेक्रेटरी नहीं मान रहा है, उनके अंदर में काम करने वाला आदमी, कम से कम पूरे हिंदुस्तान को ये बात जाननी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए लोग, जो आका शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एलजी साहब को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए और उनको भी जानकारी होनी चाहिए जो लोग बैठ करके इस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? ये यदि भ्रष्टाचार की बात, हमें कोई एतराज नहीं, क्या यह बात सही नहीं है? थोड़ा सा भ्रष्टाचार के लड़ने के बहाने एक आदमी है जो कनाडा से बैठ के लगातार वो कहता है कि ये मेरा मेल आईडी है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे को मैंने दिया है, ये उस पर आरोप है, हमको बुला लीजिए, मेल कर दीजिए, सारी चीज़ें लेके हम आते हैं। एक बार पूछताछ कर लेते, लगता तो सही कम से कम हमें कि नहीं भ्रष्टाचार से आप लड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचारियों से लड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में यहीं पे बैठ करके ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह बैठा हुआ रहता है। पॉस्को एक्ट के तहत कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और गिरफ्तार तक नहीं करते हैं। आप अरविंद चार्ज ड्रॉप हो गया था, अरविंद वो तो बाद में हुआ था ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार बार धमकी देते हैं। तमाम कहाँ धमकी दी? आप तो बोल रहे थे नहीं 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 नहीं, संजीव जी ये गलत बात है। आप कल से बोल रही है आम आदमी पार्टी अरेस्ट होने वाला है, अरेस्ट होने वाला है। भाई हो गए 8:30 बज गए, कहाँ अरेस्ट हुए? नीति बन चुकी थी, बस केवल आम आदमी पार्टी ने ये भेद खोल दिया, अन्यथा ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तो ऐसा थोड़ी ना होता, जब अरेस्ट करना होता है तो अरेस्ट हो जाता है। कौन रोकता है ईडी को अरेस्ट करने से? आप कैसी बात कर रहे हैं? ईडी सुबह से बोल रही थी मैं तो यही कह रहा हूं कि कर ले, कम से कम देश की जनता को पता तो चले कि आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, आप वोटों से हरा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से गिरफ्तार करके जेल में डाल दें आप। मोनिका मेहरोत्रा, where do you stand on the latest scam that has been exposed by Delhi's LG? Do you see this as politically motivated or do you see कि भाई बात में दम है, कोई हवा में तीर नहीं मार रहा है? Shreya, unfortunately, you see, we have to understand the consequence of these things. It's the people of Delhi who are suffering the utmost in whichever case you might see, in whichever development or scams or whatever you see. Unfortunately, politics of Delhi, Shreya, has gone to the lowest of low. On one hand, we see the elected government of the Delhi fighting against the LG and LG fighting against this thing. I think it has to be seriously taken. See, if you are a minister or if you're running this pilot project, Shreya, it had to be very systematic and genuinely true because it was a pilot project. You keep harping about the whole thing. Oh, the Mohalla clinic is doing so well and foreigners are coming to see the lady, first lady has come to see how it's been running. If this is the kind of pattern to run, my head hangs in shame. And on the other hand, LG should have been more vigilant. If the Aam Aadmi Party told them that the minister or the secretary, is involved in it, an action should have been taken. So I think both stand hand in gloves, enjoying thoroughly with this lowest of low politics, with the ultimate, concept that people of Delhi are not their, concern at all. They're just not bothered. So this is what is happening in Delhi. Unfortunately, Onika ji, if you okay, so how will you fight the election with the Congress party together in Delhi? How will you explain? I mean, since you seem to believe the charges that the LG is making, how will you fight the election in Delhi with the Aam Aadmi Party? No, they are your allies. I'm not believing the charges at all. I just said it has to be fair play. If these things, it's a CBI, he should also be vigilant when the Aam Aadmi informed them about the fake medicine or whatever. It should have been reciprocated together. Like when we were in Delhi in power, the BJP was in the center, but Delhi's work never stopped. It was ensured that, despite the differences, the work went on so that people didn't suffer. Here, what you see, Shreya, is the other way around. It's just bickering, it's lowest of low. Coming to the elections, look, whatever is wrong will become wrong irrespective of who it. Even if the Congress does wrong, it will remain wrong. But forcing yourself on it and saying that, A is bad or B is bad, that's not the ultimate answer. You're right, it's very, very low politics. It should not be done. A scam has to be, has to go through the test. And the fact also is, Onika ji, okay, I'm getting in Neerja Chaudhary into the discussion as well. Neerja ji, the fact is, and we've seen this now for a while,
irrespective of who the LG is, the LG versus Aam Aadmi Party government has become a pathological problem for the national capital. That is the truth. Do you think the BJP has successfully managed to crack the image of the Aam Aadmi Party being a Kattar Imardar party? After all, this was a party that was born out of the anti-corruption movement in this country, which many people had supported. Have they, in your mind, successfully managed to stain that image, Neerja ji, by raising one thing after another? First, it was government schools that the Aam Aadmi Party is very proud of, raising questions over that. Then, of course, came Liquorgate, and now the Mohalla clinic scam. I think more than the BJP has tried its hardest, and it's going to try even harder with the elections around the corner to besmirch the image of the Aam Aadmi Party. But it's the Aam Aadmi Party's own actions that have made it like any other party. What stands it in good stead is its delivery on 4 fronts: Bijli, Pani, reform in government schools, and Mohalla clinics. And today, the BJP has mounted an assault. It's gone for the jugular. It was all right. Liquor scam, ordinary जनता says, liquor scam में तो होता ही है. हर सरकार करती है, हर party करती है. उसमें they don't react to it so much. But scam happening in Mohalla clinics, which is the showpiece of the Aam Aadmi Party, and which I must say has benefited many people. Many people in Delhi will vouch for it, working well. I don't know what the substance of these allegations is going to be. The CBI will find out more. Other investigations will find out more about it. But so certainly the Aam Aadmi Party has much to worry on this score. But I would say one more thing. This is a battle of perceptions. While this allegation has the potential to damage the Aam Aadmi Party's image, there can also be the possibility of the BJP having gone for an overreach. Is the BJP now targeting the Aam Aadmi Party, and I'm referring particularly not to the charge as to the timing of it? Are they going hammer and tongs after the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, that it might just create sympathy? At the moment, there is no sympathy on the grounds of charges in the liquor scam, but could it create sympathy? And I think that is a political question that the BJP will have to take into account, because it is going to be a battle of perception as the battle for the 2024 election hots up, and hots up by the day, as we are now beginning to see. Okay. RP Singh, what are you showing us on your phone? Ma'am, Shreya, three children died. Okay. I mean, I'm sure that Media ma'am thing is doing well. I mean, because of the wrong prescriptions, 3 children died. नहीं, RP Singh ji. RP Singh ji, can we take away from the fact? Give me a second, Shreya, please. मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ. मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गाय भैंस घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, स्टोर बने हुए हैं. कमाल हो गई. आप कृपा कर दिल्ली में पूछिए नेजा जी, आप दिल्ली नहीं रहती, आप गुड़गांव रहती है, इसलिए दिल्ली की खबर आपको पूरी नहीं है. मोहल्ला क्लिनिक की हालत खराब है. नहीं तो ऐसा है, जरा ये जवाब दीजिए. चलिए संजीव जी को जवाब देने दीजिए. हाँ. नहीं, परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है निश्चित तौर पे. आम आदमी पार्टी की उन तमाम बेहतर जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर वो नुक्ताचीनी करते हैं, और इससे बेहतर आम आदमी पार्टी को इससे फायदा भी मिलता है. वो कहीं कुछ कमी रह गई है किसी इलाके में, यदि कोई आवारा सांड यदि बैठा हुआ है या कुत्ते घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस पर देखना चाहिए. आम आदमी पार्टी उसको संज्ञान में लेती है और उसे दुरुस्त करने का भी प्रयास करती है. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी मोहल्ला क्लिनिक पे कम से कम इस तरह से अटैक नहीं करें.
ये लोगों के ऊपर अटैक है, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर अटैक है, गरीबों के ऊपर अटैक है, जिसके जेब के कितने पैसे बचते हैं शायद सिंह साहब नहीं समझ पाएंगे कि खांसी सर्दी बुखार के लिए एक आदमी जहां जाता था 500-1000 रुपए आराम से किसी खांसी सर्दी में वो पैसे दे देता था, आज वो आराम से जाता है और अगले 10 मिनट के अंदर में दवा लेके अपने घर आता है। तो कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि दिल्ली के रहने वाले उस गरीबों के बारे में भी सोचें। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर दिख रहा है कि घपला हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और वो मोहल्ला क्लिनिक पे अटैक नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। मैंने कहा denying the fact that मोहल्ला clinics have done good for the poor, for the urban poor in Delhi. जांच रुकेंगे, किसी के कहने से नहीं, किसी को गिरफ्तारी से छोड़ेंगे। ये इनको जो करना है वो करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। लेकिन इस बार अगर बुलाया जाए चीफ मिनिस्टर को सवाल जवाब के लिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए, तो आपके चीफ मिनिस्टर सीबीआई के सब रुक जाइए, आपके चीफ मिनिस्टर सीबीआई पे आ जाएं, उनके समन को आंसर कर दे, वो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग तो इन्वेस्टिगेशंस भी ज्वाइन नहीं करते। चलिए, थैंक यू वेरी मच संजीव जी, टाइम ओवर। आरपी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच ओनेका मेहरोत्रा फॉर जॉइनिंग अस। नीरजा जी, ऑलवेज गुड टू गेट योर पर्सपेक्टिव। आरपी सिंह, थैंक यू वेरी मच, एंड संजीव कौशिक, थैंक यू very much as well.